Guys, within a 1 minute हम लोग start करते हैं. Within 1 minute. Okay, so let me start. So as we know, guys, C language में हमने अब तक function chapter पे हम लोग काम कर रहे थे. So what is the meaning of function? We already completed that. What is the meaning of function? ये हम already complete कर चुके थे. If you want to divide your program into the sub program, we can just use the function. So actually the meaning of the function is it's a group of codes. It's a group of code. You can say that it's a code to perform a special task. So if you want to perform a special task, otherwise if you want to divide your program into the small codes, into the small part, then you can use the function. So it is used for the subprogram. Used to divide programs in the subprogram. And जो आपने division एक छोटा सा division create किया हुआ है, एक छोटा सा part create किया हुआ है, you can reuse that. अब उसी part को reuse कर सकते हैं. So उससे क्या benefit होगा? Program का speed बढ़ सकता है हम लोग. Okay, so that's the benefit of the function. After that, how many types of functions are there? So ये हमने last lecture में list out किया था. So there are two types of functions. The first one is the library function. इसको हम लोग inbuilt function भी बोलते हैं. That is known as library function or inbuilt function. Another one is user defined function. मतलब जो user create करेगा. तो C language में हमने कुछ library functions learn किए थे. These library functions are printf, scanf, scanf, toTest, getTest. These all are the library functions. After that, clear screen, ch. After that, और भी हमने library functions learn किए थे. That is string length, string copy, string concat, string compare, stricmp, in short, ignore case comparison, and string uppercase,
string, lowercase, ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम लोग रन कर चुके हैं. All these are known as the library function. मतलब आपको सीधा इनको यूज करना. These are already defined. ये already बने हुए हैं. You have to directly use that. And after that, user defined function means we will define that function जो हम लोग बनाएंगे हमारे हिसाब से. नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, बट बी केयरफुल, यू कैन नॉट यूज अ कीवर्ड. मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते void integer. This is not possible. इट्स अ पोजीशन. ये एक ऐसी जगह है जहां पे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं. दिस इज अ पार्ट, एक ऐसा पोर्शन है एट विच वी हैव टू प्रोवाइड अ फंक्शन नेम. सो ये इंटीजर नहीं लिख सकते बिकॉज इट्स एन कीवर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड है जिसका कुछ ऑलरेडी मीनिंग था. ओके, सो यूजर डिफाइंड फंक्शन मींस जो यूजर बनाएगा. सो हर एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में एक यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंडेटरी है एंड दैट इज नथिंग बट अ वॉइड मेथड. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कितने टाइप्स हैं. So sir, there are two types. First one is inbuilt function, another one is user defined function. What is the function? ये हम लोग ने learn किया. Now after that, how many elements are there? So elements of the function. So totally in C language we can, what do you mean by element? तो अगर आप chemistry या 10th के अंदर भी अगर आप learn कर चुके हो, H2O करके चीज आती थी. H2O करके चीज आती थी. That's nothing but हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है H and O. इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. That is an symbol to represent in water. H2O is a symbol to represent the water. But अगर मैं आपको बोलूं, okay guys, can you please tell me how to create the H2O? H2O में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? आप सीधा ही बोलोगे ना सर, there is an H and O. That means इन दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बन के H2O क्रिएट हुआ. कौन कितने टाइम, लाइक H2 टाइम्स था, O सिंगल टाइम था, it doesn't matter. But basic elements ये है. These are the basic elements. So if I want to create a function in my program, then उसको मैं कितने parts में divide करूँ? Otherwise, एक function को create करने के लिए कितने parts की जरूरत है? These parts are known as the elements. So totally 3 elements are there. So first one is declaration, second one is code, and third one is definition. But now we already know this. हमने ये भी discuss किया था. Declaration is optional. Declaration of function is optional if we define a function. Okay. So guys, this is the small revision. What is function? How many types? So 2 types. The name of these types are, the first type is a library function, another type is a user defined function. And after that, the elements of the function. So there are 3 elements. Okay. And one more thing we discussed, that is a syntax. So function को बनाना और कैसे बनाना, how to define a function. अगर मुझे function को define करना, how to define the function, then कैसे define किया जाता है. So हमने एक function define किया था, आपको याद हो तो void line ऐसे कुछ लिखा था, curly brackets and some code will inside that, some code is there. तो इसका अगर, this is nothing but an example, अगर मुझे इसका syntax लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा. So what is the meaning of this void? What do you mean by this void? So this void is nothing but a return type. This void is nothing but a return type of this function. After that, what do you mean by this line? That's a function name. And what do you mean by this round brackets? Sir, it is used to hold the argument list. Okay, it is used to hold an argument list. It is used to hold. Okay, done guys, is it clear? ठीक है, ये हम कर चुके थे. And after that, curly bracket and body of function. हम सिंटेक्स बाद में लर्न कर रहे, पहले हम लोग सीख चुके थे, पहले हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करना सीख चुके थे. एंड आफ्टर दैट हमने सिंटेक्स यहाँ पे लर्न किया हुआ. तो इज दिस क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रिटर्न टाइप लिखना है, आफ्टर दैट फंक्शन नेम, आफ्टर दैट आर्गुमेंट लिस्ट, मतलब जितने भी आर्गुमेंट्स आपको पास करने हो, एंड आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द फंक्शन. नाउ इस सिंटेक्स को मैं एक बार कॉपी कर रहा हूँ एंड नीचे पेस्ट करके थोड़ा सा इसको और आगे डिस्कस करना है. ठीक है, सो दैट्स द सिंटेक्स. बट गाइस, इसके अंदर 2 चीजें फोकस करो. द फर्स्ट वन इज रिटर्न टाइप, अनदर वन इज आर्गुमेंट्स.
सो इन दोनों चीज का होना और नहीं होना, उसके हिसाब से कुछ कैटेगरीज क्रिएट होती है फंक्शन की। फर्स्ट कैटेगरी इज, मान लो रिटर्न टाइप नहीं है एंड आर्ग्यूमेंट्स भी अवेलेबल है, वी हैव नो रिटर्न टाइप, वी हैव नो आर्ग्यूमेंट्स, सो दैट इज नोन एज विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, without arguments and without return value, without arguments and without return value, that's the first category। फंक्शन को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट कैटेगरी, रिटर्न टाइप भी नहीं है मेरे फंक्शन के अंदर एंड माय फंक्शन हैविंग नो आर्गुमेंट्स, माय फंक्शन हैविंग नो आर्गुमेंट्स, दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी। हम लोग डिटेल में लर्न करेंगे बट पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। सो विदाउट आर्गुमेंट्स, विदाउट रिटर्न। सेकंड थिंग इज कंसीडर द आर्गुमेंट इज प्रेजेंट, argument is available, so this is my second category, with arguments, with arguments and without return value, return type is not present, consider that। now the next, after that the next thing is, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास arguments नहीं है, so without arguments but return value is it is present, so with return value। the fourth one will be with argument with return value, with argument with return value, so this is known as category, this is known as category of the function। so अगर किसी ने पूछा सर category of the function, category of the function, so there are four categories and these are the without argument, without return value, without argument, with return value, in short with without you can add। okay guys, so up to this किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो लाइन नंबर 42 तक हमने सिर्फ रिवीजन किया, आफ्टर दैट हमने सिर्फ कैटेगरी का लिस्ट किया हुआ है, नथिंग एल्स। गाइस किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो, सचिन, दिव्या, जागृति, ना सर। ओके, अमन सर। तो नाउ किसी ने पूछ लिया सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कैटेगरी, ये कैटेगरी का यूज क्या है, तो दिस कैटेगरी इज यूज टू लाइक टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द फंक्शन। मतलब मैंने एक प्रोग्राम को छोटे छोटे 4 टुकड़ों में डिवाइड किया, इन शॉर्ट मैंने 4 फंक्शंस डिफाइन किए, देन हाउ दिस फंक्शन विल कम्युनिकेट, डेटा ट्रांसफर कैसे करेंगे, एक फंक्शन के पास कुछ डेटा था, वो सेकंड फंक्शन को कैसे पास करेगा, सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन को कैसे पास करेगा। इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर एक टाइम डेटा ट्रांसफर करना ही है, it is not mandatory like in each and every time you have to transfer the data between functions, but now consider we are in a situation in which we have to transfer the data from a function to function, then this category are used, it is used to establish communication between function, it is used to generate, it is just used to create a path to transfer the data from a function to function। okay, so this is quite useful and ये सी लैंग्वेज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, फंक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ द सी लैंग्वेज। आप अपने प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एंड उसको रीयूज कर सकते हो, बट उन फंक्शंस के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए डेनिस रिची, हु इज डेनिस रिची, ही इज अ फाउंडर, ही इज अ डेवलपर जिसने सी लैंग्वेज को डेवलप किया, इज अ फाउंडर। तो डेनिस रिची ने कैटेगरीज का यूज किया फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। एक और भी तरीका है, दैट इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल, उससे भी फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हो, बट दिस इज द वर्स्ट केस। ये जो उन्होंने तरीका जनरेट किया, ये जो इन्होंने एक नया एक पाथ डेवलप किया था फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, ये सी लैंग्वेज का सबसे नेगेटिव पॉइंट भी है। बिकॉज ऑफ दिस सी प्लस प्लस वाज फाउंड, इसकी वजह से ही सी प्लस प्लस जनरेट हुआ। ठीक है, तो जेम्स गोसलिन, आप जेम्स बॉन्ड को याद रखो, ठीक है, सॉरी नॉट द जेम्स गोसलिन, इट्स अ जावा डेवलपर, जर्नेस्ट्रॉप्स, ये बंदे ने सी प्लस प्लस फाइंड आउट किया, उसने सी प्लस प्लस को डेवलप किया, बट उसको ये चीजें समझ में नहीं आई थी कि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है, इस हिसाब से उसने एक नया लैंग्वेज बना दिया, दैट इज सी प्लस प्लस। हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। सो दिस वन इज ए टिपिकल पॉइंट, ये हम लोग को काफी अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा। तो हमने सिर्फ डिवाइड किया, सिर्फ उसका लाइक एक आउटलाइन जनरेट किया, व्हाट इज फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर एंड हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन। बट नाउ गाइस इसके अंदर एक सिंपल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिकर्जन। आज हम लोग का टॉपिक है रिकर्जन, आज हमको ये लर्न करना है, रिकर्जन। ओके, सो गाइस सिंपल थिंग, अगर मैं खुद को फोन करूं तो
Is it possible, Sachin, Divya, Jagriti, Kinjal? खुद को No, phone sir. कर सकते क्या? No, sir. नहीं कर सकते? अमन सर कर सकते हैं, कर सकते क्या? बिजी बताएगा। बिजी बताएगा, ओके। गाइस मैं आपको एक सिंपल सा, मेरे साथ एक इंसिडेंस बन चुका था, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था ना, तब एक नई चीज, तब मोबाइल जस्ट आए थे, और एक बंदे ने मुझे बोला था दिस इज माई प्राइवेट नंबर। अगर मैं प्राइवेट नंबर से किसी को फोन करता हूँ ना, तो मेरा नंबर उसको डिस्प्ले नहीं होता, मेरा नंबर उसको डिस्प्ले नहीं होता। तो वो नंबर कैसे फाइंड आउट करूँ? गाइस हर एक जगह पे कुछ ना कुछ तो उन्होंने गलतियां कर रखी होती है। उस टाइम पे जब ये सब चीजें डेवलप हुई ना, जैसे अभी अमन ने ऐसा बताया, अगर मैं खुद को फोन करूँ तो बिजी दिखाएगा, ठीक है। बट तब हम लोगों ने जब फोन लिया था ना, तब हम लोग खुद को फोन करते थे ना, तो फोन लग जाता था, ऑटोमेटिकली रिसीव भी हो जाता था और पैसे भी कट जाते थे। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम, वो खुद का प्रॉब्लम था, वो सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज थे कि अगर आप खुद को कॉल करते हो ना, देन ऑटोमेटिकली वो रिसीव भी कर लेता था, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, जब आप खुद को कॉल करते हो ना, दैट इज एक्चुअली इन फंक्शन दैट इज नोन एज रिकर्जन। मैंने वो प्राइवेट नंबर वाला एग्जांपल अभी बीच में छोड़ दिया, मैं बाद में इसी चीज में मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, तो बाद में देखते हैं। बट खुद को फोन करना दैट इज रिकर्जन। यहाँ पे फोन करना नहीं, फंक्शन को कॉल किया जाता है, फंक्शन को कॉल किया जाता है। सो व्हेन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, that is known as that is known as recursion। ठीक है, हाफ डेफिनेशन है, हाफ बाकी है। गाइस जस्ट चेक दिस, मेरे पास एक डिस्प्ले वन नाम का फंक्शन है, मेरे पास एक डिस्प्ले वन नाम का फंक्शन है। लेट मी जस्ट राइट डाउन printf hello, ठीक है। नाउ लेट मी डिफाइन नेक्स्ट फंक्शन, लेट मी डिफाइन दैट इज void min। अमन सर आई नीड आंसर, मैंने यहाँ से ऐसा कुछ किया, यस अमन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर? हेलो हेलो कैसे वर्क करेगा? void main से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमने उसमें से डिस्प्ले वन को कॉल किया, कंट्रोल विल फॉरवर्ड टू दिस वन, इट विल एग्जीक्यूट, कंप्लीट होने के बाद वापस यहाँ पे आ जाएगा। डिस्प्ले वन के बाद यहाँ से कॉल हुआ था ना, तो उसके जस्ट बाद वो पहुंच जाएगा। मतलब प्रोग्राम का कहाँ से स्टार्टिंग होगा? void main से। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। बट गाइस अगर इसकी जगह मेरे पास दो फंक्शन होते तो, एंड मैंने ऐसा कुछ किया होता तो, किंजल आउटपुट Hello, hi. हेलो एंड हाई। कैसे आपने बोल दिया? अगर मैं ऐसे लिखूं तो डिस्प्ले टू एंड डिस्प्ले वन, देन पहले hi. मतलब आप लोग इस तरीके से कुछ समझ रहे हो ना? void main से प्रोग्राम का स्टार्टिंग होगा, बिकॉज़ इट्स अ मेन। उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? डिस्प्ले टू, देन दिस डिस्प्ले टू विल एग्जीक्यूट। खत्म होने के बाद वो वापस यहाँ पे आ जाएगा void main में। नाउ इट विल एग्जीक्यूट दिस डिस्प्ले वन, सो हेलो विल बी देयर। अब वो कंप्लीट होने के बाद वापस void main में आएगा। नाउ void main इज ओवर, योर प्रोग्राम इज कंप्लीट। बट गाइस अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता, नाउ एक्सपेक्टेड आउटपुट इज, अब यह सीक्वेंस क्या होगी? पहले void main रन होगा सचिन, आफ्टर दैट सचिन भाई Hi print होगा, then hello हाय print. और हेलो हाय मेन में सबसे पहली चीज हमने क्या एग्जीक्यूट की हुई है? डिस्प्ले टू। एंड डिस्प्ले टू में से हम कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले वन में। किंजल अब माइक म्यूट कर दीजिए, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है बाकी को। ठीक है, थैंक यू। ओके गाइस देखिए, सबसे पहले void main पे गए, void main से हम कहाँ पे जा रहे हैं? डिस्प्ले टू पे। तो डिस्प्ले टू पे पहले हाई लिखा हुआ है, आफ्टर दैट वी हैव अ डिस्प्ले वन, तो वहां से कंट्रोल जाएगा डिस्प्ले वन पे, एंड वहां से क्या चीज होगी? हेलो प्रिंट होगा। अब डिस्प्ले वन कंप्लीट होके वापस कहाँ जाओगे? मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया होता, इस तरीके से कुछ मैसेज होता, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ दिस वन? जल्दी गाइस, सचिन। हाय वन हेलो हाय टू हाय वन
हेलो हाई टू, बिकॉज पहले क्या हुआ, मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट फंक्शन वाज डिस्प्ले टू पे पहले हाई वन कॉल रन हुआ, मतलब सॉरी प्रिंट हुआ, आफ्टर दैट डिस्प्ले वन पे गए, तो डिस्प्ले वन पूरा कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल कहाँ पे आया, जहां से कॉल किया था, सो इट वाज इन्वोक्ड फ्रॉम हियर, इट वाज कॉल्ड फ्रॉम द लाइन नंबर 8, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाई टू, मतलब गाइस मैं सिंपल सी चीज आपको ये बता रहा हूँ, जस्ट फोकस ऑन दिस, ये कौन सी सीक्वेंस थी, पहले मेन, आफ्टर द डिस्प्ले टू, आफ्टर द डिस्प्ले वन, बट अब जब ये कंप्लीट होगा ना, जब ये फंक्शन कंप्लीट होगा, जैसे ये डिस्प्ले वन कंप्लीट हुआ, इट विल जस्ट मूव टू, वापस रिटर्न कहाँ पे होगा, इट विल रिटर्न टू द डिस्प्ले टू, वो डिस्प्ले टू के रिटर्न होगा, एंड डिस्प्ले टू खत्म होने के बाद इट विल रिटर्न टू मेन, ठीक है, मतलब जैसे आप जितना आगे जाओगे ना उतना वापस आओगे, जितना आप आगे जाओगे उतना वापस आओगे, दैट इज द मैकेनिज्म, दिस इज द मैकेनिज्म, इस तरीके से फंक्शन रन होता है, इज दिस क्लियर गाइस? Yes, sir. ठीक है, Yes. ओके ओके, तो मैं एकदम सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, नाउ लेट मी स्टार्ट रिकर्जन, व्हाट इज रिकर्जन, खुद को कॉल करने का याद रखना, हाँ, व्हेन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, हाँ मैंने बोला था हाफ डेफिनेशन थी वो, द चेंज विल अकर, the change will occur and that is known as recursion, ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन टिपिकल है, थोड़ी देर में देखते हैं, so मुझे क्या करना था, सिंपल थिंग इज देयर, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हेलो पेशेंट, ठीक है गाइस, सिंपल, I will just call main from main, is this allowed or not allowed? That is allowed, this is allowed and it is known as recursion, this is known as recursion, देखो main क्या है, main is a function और वो खुद को ही कॉल कर रहा है, main is a function और वो खुद को ही कॉल कर रहा है, so that is known as recursion. What is the expected output guys? सबसे पहले कहां से प्रोग्राम रन होगा, yes प्रीति, दिव्या, Main system. yes, तो सबसे पहले मेन फंक्शन रन हुआ, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट विल बी हेलो, Hello. उसके बाद हमने क्या कॉल किया हुआ है, Main मतलब फिर से मेन, मतलब कंट्रोल जाएगा मेन पे, वापस ऊपर गए, क्या लिखा हुआ है, हेलो, हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद क्या लिखा है गाइस, मेन, once again it will move to the main, then hello, then main, then hello, मतलब क्या होगा, it will be infinite, so that's the recursion, this is not a good idea, so output of this program is, output will be infinite, check करें ऐसा अलाउ है कि नहीं है, let me just go through this language, एक बार रन करके देखते हैं ना, सिंपल सा प्रोग्राम था, साथ में रहना गाइस, ये बहुत मजेदार चीज है, सर ब्रेक डाल के ओवर भी कर सकते हैं सर ब्रेक का स्विच केस और लूपिंग दो में यूज होता है, फंक्शन में नहीं होगा, नहीं होता, अगर फंक्शन के अंदर आपके पास लूप है देन यू कैन यूज, बट रिकर्जन में यूज नहीं कर सकते, मैंने जो वहां पे प्रोग्राम लिखा था वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेलो सेशन, क्या लिखना था गाइस, ओके रन करूँ, मैं पहले सेव कर देता हूँ, t.c कुछ भी नाम दे दिया, सो जो दूसरी बैच के स्टूडेंट जो अभी अटेंड कर रहे हैं उनको मैं सिंपल बता दूं, इंक्लूड फाइल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, अगर आप अपने प्रोग्राम को .c से सेव करते हो then has include stdio, has include conio.h are not required, okay, your program will compile successfully and your program will execute successfully, तो गाइस मैं इसको रन कर रहा हूँ, हम लोग को पता था आउटपुट इनफाइनाइट आना चाहिए, तो यस ठीक है, पूरा स्क्रीन इसने भर दिया, मैं एंटर लगा रहा हूँ तो अभी ये बंद नहीं हो रहा, फोर्सफुली मुझे इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना पड़ेगा, फोर्सफुली मतलब मुझे कंपलसरी सी लैंग्वेज को ही बंद करना पड़ेगा,
फोर्सफुली मीन्स मुझे सी लैंग्वेज को ही टर्मिनेट करना पड़ेगा. Is this okay? So output of this program is infinite as expected. As expected, output of this program is infinite. हम लोगों ने सोचा ही था. बट अगर आपका प्रोग्राम का आउटपुट इनफाइनाइट आ रहा है, देन इसका यूज क्या? अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को फोर्सफुली ही बंद करना पड़ा, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? एंड इट इज यूजलेस. देन हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? सर दयानंद सर, इट्स नॉट पाइथन. हम लोग एंड यूज नहीं कर सकते. Okay, that was a Python functionality. Okay guys, so what is the सर तुम्हारा आवाज नहीं आवता. कुछ सर वो आपका आई थिंक नेटवर्क इश्यू होगा. बाकी गाइस आवाज आ रही है? सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कुछ सर मे बी नेटवर्क इश्यूज होंगे आपको. हाँ सर. Okay, so guys मुझे क्या करना था? What is our next requirement? At anyhow, first of all I want to just check recursion is allowed or not allowed. So recursion means function में फंक्शन जब खुद को कॉल करे तो दैट इज नॉन एज रिकर्जन. दैट इज नॉन एज रिकर्जन. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैं खुद को ही फोन कर रहा हूँ, दैट इज द रिकर्जन. अनदर थिंग इज, हमने पहले रिकर्जन चेक किया, इज दिस अलाउड और नॉट, तो दैट इज वर्किंग, बट आउटपुट इज इनफाइनाइट. तो कंपाइल टाइम एरर नहीं था, मेरा प्रोग्राम रन भी हुआ और हमने सोचा ही था कि अगर खुद को ही कॉल करते होगे तो आउटपुट इनफाइनाइट. बट इज देयर एनी अदर वे टू क्रिएट द रिकर्जन? ऐसा कोई और तरीका है जिससे हम रिकर्जन कर सकते हैं? गाइस किसी को भी आइडिया हो, निधि, मुस्कान, किसी को भी आइडिया हो कि कोई और तरीका अवेलेबल है जिससे हम रिकर्जन जनरेट करा सकते? पहला तरीका था खुद को फोन करो, खुद को फोन करो. इज देयर एनी अदर वे? खुद को फोन करो फंक्शन जब हम खुद को फोन कॉल कर रहा है, दैट इज नॉट इज रिकर्जन. एनी अदर वे इज देयर? यस गाइस. हम रिटर्न में उस फंक्शन को कॉल कर. नहीं मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट सी लैंग्वेज. यस गाइस. लेकिन मेन को क्यों कॉल कर रहे हैं? मैंने मुझे सिर्फ चेक करना था कि रिकर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा. अच्छा, सिर्फ मुझे सिंटैक्स चेक करना. ओके गाइस, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं अमन को फोन कर रहा हूं, बट अमन ने अपना फोन डाइवर्ट कर रखा है मेरे पे. मैं खुद को फोन नहीं कर रहा, मैं फोन किसको कर रहा हूँ? अमन को. बट अमन ने क्या कर रखा है? इट जस्ट डाइवर्ट हिट इनकमिंग कॉल. दैट गाय जस्ट डाइवर्ट्स द इनकमिंग कॉल टू माय नंबर ओनली. तो मेरा फोन उस पे गया, वहां से कहां पे आएगा? दैट इज आल्सो रिकर्जन. तो रिकर्जन के एक्चुअली दो तरीके हैं. The first one is direct recursion. कि जहां फंक्शन खुद को डायरेक्टली कॉल करता है. सेकंड वे इज इनडायरेक्ट रिकर्जन. तो मैं इनडायरेक्ट रिकर्जन का एग्जांपल दे रहा हूं. आई हैव अ void display. Inside that I just write down print hi and बस एक void main था. यहाँ पे मैंने लिखा था printf hello. एंड अगर मुझे रिकर्जन करना है, मैंने यहाँ से डिस्प्ले को कॉल किया सचिन. तो डिस्प्ले पे पहुंचे और डिस्प्ले पे हाई आने के बाद भाई साहब ने मेन को कॉल कर रखा. तो नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? इसका आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फंक्शन विल वर्क. मेन फंक्शन में हेलो डिस्प्ले हुआ. देन क्या होगा? डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हुआ. आफ्टर दैट डिस्प्ले पे पहुंचे, वहां पे क्या प्रिंट होगा? इट विल डिस्प्ले हाई. वहां से क्या कॉल हो रहा है? मेन पे जाने के बाद क्या रन हुआ? हेलो के बाद क्या होगा? डिस्प्ले. वहां से क्या होगा? मेन से क्या होगा? डिस्प्ले. सर इनफाइनाइट. So that is also recursion, but this is known as indirect recursion. That is known as indirect recursion. So ये भी एक चेक कर ही लेते हैं. देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन लाते कि इनफाइनाइट को मुझे एनी हाउ स्टॉप करना. सो आवर लास्ट प्रोग्राम वाज p.c. This is 1.c. क्या करना था? आई वांट टू डिफाइन द more फंक्शन. मुझे लिखना था from that I want to call main function. यहाँ से मेन को कॉल करने की जगह मैं डिस्प्ले को कॉल करूँगा. तो मुझे चेक करना है सिर्फ, I know output will be infinite. But I want to just check if this syntax is supported by the C language or not. C language supports the syntax or not.
So let me run this once again. 1 minute guys. बीच में आ गया. Guys म्यूट कर दो ना जहां से नॉइज आ रहा है. प्रॉब्लम ठीक है. ओके ओके गाइस जस्ट चेक दिस. यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है मुझे. व्हाट इज द एरर? व्हाट इज द एरर? इट्स a type mismatch in a redeclaration of main. So यहाँ मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया हुआ है. यहाँ से मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया है. बट सचिन मेन फंक्शन का डेफिनेशन बाद में दिया है. देखो मेन फंक्शन का डेफिनेशन बाद में दिया. देन व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू डिक्लेयर इट. इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा. ओए इन फ्यूचर ऐसा मेन फंक्शन तुझे मिलने वाला है. दैट्स इट. सो गाइस जस्ट चेक दिस. हाय हेलो लाइक दैट. इट्स एन इनफाइनाइट आउटपुट. Automatically it stops the C language because memory is full. Automatically it stops the C language. Is this clear? So that was the infinite. So in short, अगर आप डायरेक्ट रिकर्जन की बात करो या इनडायरेक्ट रिकर्जन की बात करो, आउटपुट विल बी इनफाइनाइट. तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? तो रिकर्जन का यूज क्या है तो वो लर्न करते हैं. फर्स्टली हाउ टू स्टॉप द रिकर्जन. तो फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू राइट द रिकर्सिव प्रोग्राम. सो देयर आर टू डिफरेंट वे. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, second one is indirect. तो हमने दोनों तरीके देख लिए. So how to write down a recursive program, we are familiar with this. But now the next thing is how to stop the recursion. इसको stop कैसे करें और use कैसे करें. Okay, guys मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ. Please rejoin that because हमारे पास 8 मिनट ही है. Okay, please rejoin this.